So good evening, everyone. This side Subhash Karthik, Master Communication Trainer. I welcome you in our personality development class. And today our topic is very, very important. And the topic is self-esteem. Self-esteem. And today will be the part one. You'll be getting the part two after you are over with this season. Okay. So before I go ahead, I would really like to know from you all. I may not ask everyone, but I'll ask some people. What do you understand by self-esteem? Okay, so I'll ask Poonamji. Poonamji, what is self-esteem? So self-esteem means like self-respect. Self-respect. Very good. When Very we good. will respect ourselves, we will give value to ourselves. Then only people will respect us and give value us, and they will not take us for granted. So that Absolutely is right. self. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah, Debashish, what do you have to say here? Good evening, everybody. Good evening. Myself Devashish. And as Poonamji said, self-esteem means self-respect. Yes, I do agree with her. But actually, self-respect is, it goes with personality trait. There are so many traits. So self-esteem goes with the personality trait. It's a confidence in one. 100%, it's 100% self-respect, but it's a confidence in one's abilities. It may be a pride, it may be shame, it may be glory, it may be emotions, it may be anything. All this thing counts in self-esteem. Okay. Sorry, Okay. Thank self-esteem. you. Thank you. Thank you very much. Okay. Is there anyone who would like to add something? What is self-esteem? See, I'm not asking for right answer. I'm asking for what you believe in that. Yeah, Rupa, tell me. Your voice is not coming. Please unmute yourself. 100% understanding of ourselves. Very good. Understanding of the self. Very nice. Thank you, sir. Okay. Repeat. Personal value, belief, and emotions. Personal value, emotion, Beliefs. and beliefs. Beliefs. Very good. Very good. Very good. Okay. I'll show you one small video. In that video, you will understand there is one person and what is the level of the self-esteem that person has. Okay. So please watch this. So friends, we have seen this person. This person is Mr. Nick Vujicic. This person is Mr. Nick Vujicic. Nick, N-I-C-K-V-U-J-I-C-I-C. Nick Vujicic. He has no arms, no legs. But imagine he's super happy. He's super ready. You know, by seeing him, you know, by talking to him, you will never understand that's, you know, he's a sad or something. He is enjoying his life because he respects himself. He knows that he cannot change himself. Whatever he has been given, he has to accept it. And whatever he has, he would like to take it and love it and go with it. You know, आजकल कैसा होता है, आजकल एक इंसान को एक बार वो फेल क्या कर जाता है, he starts, you know, feeling like doing suicide. एक इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे लाइफ में. He doesn't make a right decision. He feels I can't do anything. You imagine अगर हमारे पास हाथ ना हो, पैर ना हो, what will be our life? क्या हम लोग इसके जैसे खुश हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका सेल्फ एस्टीम हाई है कि नहीं. If your self-esteem is high, you will always be ready for your life, whatever the situation is. आपका कोई भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन से निकल आओगे. देखो, ऐसा नहीं कि if you have a high self-esteem मतलब आप रोगे नहीं. रोना is a different thing. You will cry, but you will come out from that position. But this high self-esteem is very, very important. Let's see more about high self-esteem because this is very important because many people, they don't have high self-esteem. So many people, they look at the mirror and they say, I am not beautiful. I am not beautiful.
I don't know. You tell yourself, when you see the mirror, you love that person. The person you see on the mirror, you love that person or you hate that person. If you love that person and you say, wow, you are looking so gorgeous, you are looking so beautiful, do you really say that? If you say that, it means, yes, you have high self-esteem. That is one of the parameter you can say that, yes, you have high self-esteem. But are you sure you say positive talks? You do positive talks जब आप अपने को आईने में देखते हो? Think about it. आप हमको आंसर करने की जरूरत नहीं है. आप अपने बारे में सोचो. So ये जो वर्कशॉप है ये 2 दिन का है. आज हम लोग पार्ट 1 में है, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे. We will learn ये सेल्फ एस्टीम होता क्या है, ये सेल्फ एस्टीम बनता कैसे है, ये सेल्फ एस्टीम के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स होते हैं. एंड वी विल ऑल्सो लर्न कि अगर आपका सेल्फ एस्टीम डाउन है तो इसको हम इंप्रूव कैसे करेंगे. हाउ टू हैव हाई सेल्फ एस्टीम. आई गारंटी गाइज, जितने भी टाइम हमने ये वर्कशॉप किया है, ये वर्कशॉप के बाद एटलीस्ट आई गेट 1 मैसेज, एक मैसेज तो मेरे को मिलता ही है स्टूडेंट के तरफ से कि सर ये 2 दिन में मुझे अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिखा. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ देयर आर मेनी पीपल हु आर सीइंग दिस. I'm confident that many people will say after this class is over, though Fridays जब हम लोग over कर देंगे, and I will surely get 1 message at least that sir, these 2 classes were awesome. And you know, I can say that I have changed my life. So hope for the best guys, and I'm telling you because this class has helped me a lot. मुझे बहुत help मिला इस class से. So I believe that this class will definitely help you. So what is self-esteem? Self-esteem refers to the way we see and think about ourselves. हम अपने सेल्फ को, अपने आप को कैसे देखते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है ये हमारे सेल्फ एस्टीम से. अगर आप अपने को सोचते हो कि आई एम नॉट गुड, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम है, लेकिन ये लो सेल्फ एस्टीम है. अगर आप सोचते हो कि आई कैन डू मेनी थिंग्स, मैं अच्छा हूं, इट इज अ हाई सेल्फ एस्टीम. और आपको पता है ये चीज, यू नो दिस. इट इज नॉट अ रॉन्ग फॉल्स आइडिया. ऐसा नहीं कि आप बस अपने को बोल रहे हो नहीं मैं अच्छा हूं, लेकिन आपके दिल के किसी कोने में है कि आप अच्छे नहीं हो. You know exactly that, yes, I know I'm right. I know I'm good. I know I'm beautiful. I know I'm perfect. And you feel it. लोग क्या बोलते हैं अलग बात है, but you know that I am good. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. एक बार केके सर उस समय जमशेदपुर में रहते थे. तो केके सर, आप लोग सब जानते हो केके सर को. तो केके सर ने एक स्टूडेंट को बोला था कि तुम कलकत्ता जा रहे हो, तो कोलकाता से ना जो गंगा नदी का जो पानी है ना, वो गंगा नदी का पानी थोड़ा लेके आना. तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है भाई, गंगा नदी का पानी ही लाना है, कौन सा बड़ी बात है. तो अब वो इंसान जब कोलकाता में गया, वो इंसान भूल गया कि सर ने क्या बोला था. ठीक है, तो वो क्या किया ना, अब सर को तो बोल दिया कि मेरे को पानी लाना है गंगा नदी का, तो उसने क्या किया, वो जमशेदपुर वो आ गया था कोलकाता से. अब उसे याद आया तो जमशेदपुर में ही ना नल में पानी भरा और केके सर के पास लेके आ गया. अब केके सर ने बोला अरे यार ये गंगा नदी का पानी है. बोला हाँ सर ये गंगा नदी का पानी है सर. तो केके सर ने बोला आर यू श्योर. हाँ सर एकदम. तो देखो यहाँ पे वो इंसान कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि यस गंगा नदी का ही पानी है, लेकिन उसके अंदर दिमाग में है ये मेरे घर का पानी है. तो वो जितना भी जोर लगाएगा वो सामने वाले को तो बोल लेगा, लेकिन उसके अंदर में वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और उसको हमेशा लगेगा यार मैंने अपने टीचर से गलत बोला. फिर हो सकता है बाद में जाके वो अपने टीचर को बोले आई एम सॉरी सर, मैं गलत था. तो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कभी भी होता है ना, लोग झूठ बोलते हैं कभी कभी, लेकिन उसके सेल्फ एस्टीम में है कि मैं झूठ बोल रहा हूं. तो सेल्फ एस्टीम को आप जितना सेफ रखोगे, जितना प्रोटेक्टेड रखोगे, आप उतने कॉन्फिडेंट एंड उतने सक्सेसफुल होगे. आप सेल्फ एस्टीम के साथ अगर खेल करोगे ना, यू विल प्ले विद सेल्फ एस्टीम, यू विल रिपेंट और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा.
ऐसे भी दिन आए कि मैंने एक इंसान से झूठ बोला था। सो बाद में जब मैंने उसे सच बोलने की कोशिश की, उसने मुझे बिलीव नहीं किया, और आज भी वो मुझे बिलीव नहीं करते हैं। वो इंसान आज भी नहीं करता है। सो आज मैं कितना भी अच्छा फील करूं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि क्यों मैंने वो झूठ बोला, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप जितना झूठ बोलोगे ना, आपका सेल्फ स्टीम डाउन होता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इवन मैं बताऊं, सच्चाई छुपाना भी एक झूठ ही है। बहुत लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन सच्चाई छुपाते हैं। सो वो भी एक तरह का झूठ है, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि मुझे वो इंसान को ये बोल देना चाहिए, लेकिन हम उस इंसान को नहीं बोलते हैं। इससे होता क्या है, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप तो ठीक है, वो एक ना एक दिन आपको सांप के तरह डसेगा ही। अगर आप किसी कोई चीज छुपा रहे हो, यू विल फेस प्रॉब्लम, एंड आपका जो सेल्फ स्टीम है ना, इट विल ऑलवेज गो डाउन। सो गाइज, बिकॉज आपको झूठ आप बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। व्हाट यू आर, सी आई नो, वी आर ह्यूमन बीइंग, गलतियां करते हैं हम लोग, झूठ भी हम लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज आप लोग सोचो अपने लाइफ में कि कितने बार आपने अपने सेल्फ स्टीम को जाने अनजाने में लो किया है। थिंक अबाउट इट। सेल्फ स्टीम, व्हाट इज इट मेड ऑफ? ये बनता कैसे है? सेल्फ स्टीम, हम अपने को कॉन्फिडेंट मानते हैं, हम अपने को कॉन्फिडेंट नहीं मानते हैं, तो ये होता कैसे है? मतलब कोई इतना कॉन्फिडेंट, कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं, ऐसा क्यों होता है? Your self-esteem is made up of all the experiences and interpersonal relationship you have had in your life. Everyone you have ever met has added to or taken away from how you see yourself. आप बचपन से लेके जितने भी लोगों से आपने मिला है या बात किया है, उन लोगों ने आपके लाइफ में कुछ सेल्फ स्टीम को या तो बनाया होगा या गिराया होगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम सच्ची एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ साल पहले तक मुझे बहुत डर लगता था। डर, आई डोंट नो आप लोग में किसे इसको डर लगता है। मुझे कभी कभी मैं घबरा जाता था, छोटी छोटी प्रॉब्लम में मैं घबरा जाता था। यू नो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ पता है? जब मैं छोटा था, माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर ना मुझे बोलते थे, पता है ये अगर बहुत बारिश होगा तो क्या होगा, बहुत बारिश होगा ना तो सुनामी आ जाएगा। तो मैं डर जाता था, तब बहुत छोटा था, डर जाता था। बहुत सारे मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे, पता है वो जो लैम्प पोस्ट है ना, वो अगर गिर गया तो क्या होगा। तब मैं छोटा था, मुझे बोलते थे कि क्या होगा, फिर मैं बोलता था क्या होगा दादाजी, तो वो बोलते थे कि सब हम लोग मर जाएंगे। बचपन से ना मैं, बहुत लोग मेरे लाइफ में आए जो मुझे डराए। उनको भी पता नहीं था कि वो डरा रहे हैं, वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, बच्चों से ऐसे बात किया जाता है, लेकिन शायद वो जो बोल रहे थे, मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ बन रहा था। क्या बन रहा था पता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनिक। पैनिक, ये वर्ड शायद आपको आपके लाइफ में आपने सुना होगा, पैनिक। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पैनिक होता है। बहुत लोगों को जब पब्लिक स्पीकिंग में लोगों के सामने खड़े होना पड़ता है ना, उनका हार्ट बीट धक 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 धक, मतलब मतलब हमको भी सुनाई देगा, मतलब ऐसा इतना धक 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 करता है। इसे बोलते हैं पैनिक। ये कहां से होता है? हो सकता है कि आपको कोई ना कोई तो डराया होगा। आप एक बच्चे को खड़े कर दो, बड़े लोगों के सामने, वो डरेगा नहीं, लेकिन बहुत बड़े लोग डरेंगे, क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं उसको इंसल्ट हुआ था या तकलीफ हुई थी, या कोई उसको डराया था कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, लोग तुमको गलत बोलेंगे, तुम अगर गलत इंग्लिश बोलोगी तो तुमको लोग बोलेंगे, तुमको इंसल्ट करेंगे। तो ये हो सकता है ये सच्चाई बोला था, लेकिन उन्होंने आपके सेल्फ स्टीम में एक और नेगेटिव पॉइंट डाल दिया, ताकि आप हमेशा अपने आप को ये सोचो कि मेरे से ना होगा, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। मैं बता रहा हूं राइट नाउ,
there are many people who are attending this session. आप लोग में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अभी भी डाउट है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे आपके लाइफ में. आप लोग मतलब आप लोग ज्वाइन तो कर गए हो, लेकिन डाउट अभी भी है. मैं बनूंगा, ज्वाइन तो कर चुका हूं, पैसा भी मैंने दे दिया है, लेकिन मेरे को डाउट है. अगर डाउट है, no doubt you have low self-esteem. If you have doubt, it means you have low self-esteem. मतलब आत्मनिर्भरता, आत्म जो एक एक शक्ति होता है वो एकदम डाउन हो चुका है. और डाउन अगर होगा, you will never be successful in your life. You will always be sad. आपको जो चाहिए लाइफ में आपको नहीं मिलेगा. बहुत लोग ना अपना ये दे प्रिपेयर देयर टॉक, बहुत लोग अपना टॉक प्रिपेयर करते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के दिन वो हिम्मत करके आते भी हैं, दे कम फॉर द क्लास, बट जैसे ही उनका बारी होता है ना, या तो उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है, या तो स्विच ऑफ हो जाता है, या तो बैटरी खराब हो जाता है, या तो वो हाउ 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 करते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है सर, मेरा आवाज जा रहा है सर. वो उनको पता है कि आवाज तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, जाएगा कहाँ से. और हम लोग अब सर हैं, हम लोग भाई ये सब जगह से उठे हैं, हमको पता है आवाज मुंह खोलने से ही जो आवाज निकलेगा जरूरी तो नहीं है. तो ये सब है पहचान की आपका जो सेल्फ स्टीम है दैट इज वेरी डाउन. अब आप लोग सोचते हो सर ये तो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में है ना, दूसरे जगह तो कॉन्फिडेंट हूं ना मैं. ऐसा नहीं होता है. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इट विल affect you in your life. It will definitely affect you in your life. कहीं ना कहीं आपको वो affect कर रहा है. So guys, self esteem, बहुत लोग आपके लाइफ में आए and they had given you something. डराया होगा आपको कि इंग्लिश सीखोगे तुम शादी के बाद, वो भी, और आप डर जाते हो बहुत समय. मतलब आप मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब ज्यादातर लोग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ esteem. सेल्फ esteem अगर आपको लग रहा है कि यू कांट, इट इज अ लो सेल्फ esteem. इफ यू थिंक आई कैन, इट इज अ हाई सेल्फ esteem. और एक बात बता दूं, बहुत ऐसा नहीं है कि जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनको ज्यादा पता है, ऐसा बात नहीं है. हो सकता है आई नो लेस बट माई सेल्फ esteem इज हाई. मुझे लगता है आई कैन डू इट, आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक, बट जब समय आएगा मैं कर दूंगा. और कुछ लोगों को बहुत कुछ पता है बट स्टिल दे कांट स्पीक. देखो, अगर अभी जो टॉपिक है सेल्फ esteem, इफ आई कॉल माई डॉटर हियर, मैं बोलूंगा कि सेल्फ esteem में बोलो, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगी, क्योंकि वो इतना सोचेगी नहीं कि क्या टॉपिक है. वट एवर शी विल फील शी विल से, बिकॉज द सेल्फ esteem इज हाई. भले ही उसके पास नॉलेज उतना नहीं है टॉपिक के बारे में. देखो, नॉलेज होना और सेल्फ esteem बढ़ना ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यही होना चाहिए. बट मैंने देखा है देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉलेजेबल बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं यार यू आर स्पीकिंग वेरी गुड, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. वो मानेंगे नहीं भाई, मैं आई नो आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड. सर के बोलने से क्या होता है, आई नो आई एम नॉट गुड. अब बताओ. सो गाइस, बहुत समय होता है ना कि हमें बड़े लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो, एंड हम फिर भी वही करते हैं, ऑल्दो मुझे ही पता है कि वो गलत है. तो जब दिस लो सेल्फ एस्टीम इज किलर. इंसान का जब लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, बहुत सारे इंसान सुसाइड भी कर लेते हैं. इसे इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. हम लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, सोच रहे हैं यार क्लास है, आपको भी नहीं पता ये लो सेल्फ एस्टीम, इफ यू हैव इट फॉर मोर टाइम, ऐसा दिन भी आ सकता है यू फील लाइक किलिंग योरसेल्फ. आपको लगेगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग. अब जी के क्या करेंगे. देयर आर पीपल लाइक दैट. सो गाइस, always remember this is very important to have our self esteem high. देखो, अभी आपका सेल्फ एस्टीम क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत अभी दिमाग में आ रहा होगा कि या लो है, या आप लोग सोच रहे हो नहीं नहीं हाई है. जो भी हो, आई थिंक बाय द नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जब हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे, आज ही बात करेंगे उसमें. आई रियली वांट कि आप लोग उसको सीरियसली लो और अपने सेल्फ एस्टीम को एकदम हाई करो. इट इज पॉसिबल.
और अगर आप अप्लाई करोगे जो भी आपको यहाँ पे टिप्स एंड टेक्निक्स दिए जाएंगे, इफ यू फॉलो दैट, आई डोंट हैव इवन अ सिंगल % डाउट कि आप अपने को इंप्रूव नहीं कर सकते. I'm telling you, you will be super confident after these 2 classes. I will at least try. I know I cannot help everyone, but क्या होता है ना, कब किसकी बात किसको लग जाए, nobody can say. I'm giving my 100%. Hope we can make it. Okay, let's go ahead. The effect of high self-esteem. High self-esteem होने से क्या क्या फायदा है? You know, जब आपका high self-esteem होगा ना, people with high self-esteem possess the following characteristic. They like to meet new people. उनको ना नए नए लोगों से मिलने में मजा आता है. They love new people. उनको लोगों से बात करने में अच्छा लगता है. They love to meet. They love to talk. अब आप सोचो, आप में ये चीज है? Do you really like to meet new people? Think about it. No need to answer. आप खुद सोचो कि अगर if you feel scared, if you feel afraid of meeting new people, it is a low self-esteem. तो कैसे ठीक करेंगे उसमें बाद में जाएंगे, पहले अपने आप को पहचानो. सेल्फ डिस्कवरी इज द फर्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट यू थिंक अबाउट इट. आर यू स्केर्ड ऑफ पीपल? क्या आपको लोगों से डर लगता है? क्या ऐसे भी लोग हैं जिनको ना लोगों से नॉर्मली डर नहीं लगता, लेकिन उसके हायरार्की से जब कोई ऊपर का इंसान हो ना, जिसका इनकम उससे ज्यादा है, जिसका एज उससे ज्यादा है, वो डर जाता है. अरे यार वो तो मैनेजर है. सो ये भी लो सेल्फ एस्टीम है. हाँ, आप क्यों डरोगे अपने बॉस से? डरोगे क्यों? आप रेस्पेक्ट दोगे. डरोगे क्यों भाई? आप रेस्पेक्ट दोगे. हाँ, ही इज माई सीनियर. बट आप डरोगे क्यों? बहुत हाउसवाइफ्स हैं, सॉरी टू से, मैं यहाँ पे किसी को डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, बहुत हाउसवाइफ्स हैं जो अपने पति से डरते हैं. क्यों डरे? क्यों? मैंने हाँ, रेस्पेक्ट करते हैं भाई. आई रेस्पेक्ट यू. डरे क्यों? अगर कोई डरता है तो भाई ये लो सेल्फ एस्टीम है. ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, I'm just giving you example. जिसको सोचना है सोच ले, समझना है समझ ले. डरना is a low self esteem. I respect. जैसे मैं जब छोटा था, मैं अपने फादर से डरता था. हमारी कभी फ्रेंडली रिलेशन नहीं हुई है, बट अभी चीजें डिफरेंट है. I'm not afraid of my father right now, but एक टाइम में I used to be scared. मतलब इतना डर जाता था ना कि मतलब बोलो ही मत. उस that was very difficult time. तो that was a low self esteem. So पहले तो अपने को जानना है भाई, मेरा लो है कि हाई है, फिर उसको ठीक करेंगे हम लोग. They don't worry about how others will judge them. जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है ना, वो अपना काम करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको क्या बोलते हैं, लोग उसको कैसे लेंगे. दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ इट. उनको लगता है कि बॉस हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसका इफेक्ट अच्छा होगा. What people will say, it really doesn't matter. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे. आप लोग में बहुत जन होंगे, जब आप लोग लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने आते हो, तो आप लोग को लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, कि मैं अच्छा नहीं बोलता हूं. तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये लो सेल्फ एस्टीम है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर लो है तो उसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं. एक टाइम में आई ऑल्सो हैड अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम. आई हैव वर्कड अ लॉट. सो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं. तो पहला तो है सेल्फ डिस्कवरी. पहले आप सोचिए कि आपके साथ कितना स्टोरी मिल रहा है. और क्या होता है हाई सेल्फ एस्टीम लोगों के साथ? दे हैव द करेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. उनको जब अपने बारे में किसी को बोलना होता है ना, वो एक्सप्रेस अच्छा से कर लेते हैं. उनको जब किसी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है ना, दे फाइट फॉर देयर responsibilities, and whatever they want, they ask for it. मेरे को ये चाहिए. उनके पास एक करेज होता है. उनको लगता है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, तो मैं डरूं क्यों भाई? Why should I be scared if I have not done anything wrong?
They have the courage to express. आप लोग क्यों डरते हो जब पब्लिक स्पीकिंग में आते हो? What is the reason? कुछ गलती किया है आपने? Have you done any mistake? Why are you scared? लोग क्या बोलेंगे? लोग आप कितने लोगों को प्लीज करोगे? आप सबको खुश नहीं कर सकते. सो आप अपने काम से मतलब रखो. यू कम, स्पीक एंड गो. कोई आपसे अच्छा बोलेगा, दैट इज फाइन. व्हाई यू आर स्केर्ड ऑफ इट? यू डू योर बेस्ट. आप अपने को बोलो, यस मैंने आज अच्छा किया. उसने मुझे क्या बोला यार, उसने काफी अच्छा बोला, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स? इट इज योर लाइफ एंड यू हैव टू थिंक अबाउट यू. व्हाट अदर्स स्पीक्स, दैट्स नॉट व्हाट यू आर. आप क्या हो, that is important. Their lives are enriched with new challenges, action and miracle. जो लोग हाई सेल्फ स्टीम होते हैं ना, उनके लाइफ में मिरेकल्स होता है, बहुत चैलेंज होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, एंड दे फाइट विद दोस प्रॉब्लम एंड दे क्रिएट मिरेकल्स. उनके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, दे क्रिएट मिरेकल्स. और जो लो सेल्फ स्टीम होता है ना, उनको हमेशा लगता है आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट लकी. कभी उसको आप बोल दो, अरे यार लॉटरी खरीद क्या हो ना, तो बोलेगा लॉटरी क्यों खरीदे, मेरा लॉटरी लगेगा ही नहीं. आई एम सो अनलकी. मैं इतना अनलकी हूं ना, मैं उस लॉटरी के शॉप में जितना लॉटरी है सब भी ले लूं ना, तो मेरा लॉटरी का नंबर फिर भी नहीं लगेगा. वो इतना अनलकी है, मतलब अनलकी अपने को फील करता है. गाइस, यहाँ पे लाइफ में कोई अनलकी नहीं होता है, अनलकी फील करता है. और जिस वक्त आप अपने आप को अनलकी फील करते हो, यू बिकम अनलकी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो जो लोग हाई सेल्फ स्टीम होते हैं ना, उनको लगता है माई लाइफ इज सुपर्ब, बहुत एक्शन है, बहुत मिरेकल्स है, आई एम सो हैप्पी. आप इस लड़की को देखो, शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ. शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ. शी इज डूइंग वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू. See this boy, very confident. They are nicer to be around. You know, जो लोग हाई सेल्फ स्टीम होता है ना, उनका लोग पसंद करते हैं. लोग बोलते हैं वाओ यार तू आ गया, तू नहीं होता तो मजा नहीं आता. दे आर मैग्नेटिक, मैग्नेट है वो, लोगों को बहुत जल्दी पसंद आ जाते हैं. आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू, मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, आई एम आस्किंग यू गाइज दैट आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर सब लोग आपको पसंद करें? पीपल दे स्टार्ट लाइकिंग यू, पीपल दे स्टार्ट उनको अच्छा लगे, सर 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 प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी खींचिए ना. क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? कब होगा? जब आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा. कोई लो सेल्फ स्टीम में के साथ इंसान के साथ सेल्फी नहीं खिंचाता है. लो सेल्फ स्टीम इज मतलब इज वेरी डेंजरस. मैं बोल रहा हूं बहुत डेंजरस होता है. और कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है, थोड़ी देर बाद देता हूं, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं. Their ideas are met with interest because others want to hear what they have to say. आपका अगर सेल्फ स्टीम हाई होगा ना, लोग आपको सुनेंगे. अरे बोलो ना, बोलो, बोलिए पूनम जी, मैं आपको सुनने के लिए आया हूं. बोलिए देवाशीष जी, आई वॉन्ट टू लिसन यू. टेल मी स्मृति, आई वॉन्ट टू लिसन यू. इफ यू हैव हाई सेल्फ स्टीम, लोग आपको सुनेंगे हमेशा, ऑलवेज. दे आर मैग्नेट्स टू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी. ये लोग कहीं पे भी होते हैं ना, ये हाई सेल्फ स्टीम वाले, वहां पूरा वातावरण, वहां का एनवायरमेंट पूरा पॉजिटिव हो जाता है. जो लोग खुश नहीं रहते ना, वो लोग को भी अच्छा लगता है. आप भी सोचो, आपके लाइफ में भी ऐसा कोई इंसान जरूर होगा, जब भी आप उनसे बात करते हो या जब भी आप उसके सामने आते हो, उसको सुनते हो, आप सब भूल जाते हो. आपको लगता है लाइफ इज ऑसम. जैसे वो इंसान चला जाता है, फिर वही लाइफ डाउन चला जाता है. Think about it. People with high self-esteem have an I know I can attitude. उनको हमेशा लगता है I can do it, I know I can. हमेशा उनका एटीट्यूड ही रहता है ऐसा, I know I can, मुझे पता है मैं कर लूंगा. I know I can manage, I know I can manage. अच्छा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगा, but I can manage. कुछ भी हो, they will never say that it is impossible, मैं मैनेज नहीं कर सकता. They can always manage.
These are the symptoms of high self-esteem people. Any question? अभी तक अगर किसी को कोई question है तो you can ask. The effect of low self-esteem. अब हम लोग बात करेंगे जो लोगों का लो सेल्फ एस्टीम होता है उनको आप कैसे पहचानोगे. जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है आप खुद भी चेक कर लेना कि इसमें जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए. दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ. उनको अपने पे भरोसा ही नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं. उनको अपने पे भरोसा ही नहीं है कि वो अच्छा टॉक दे सकते हैं. उनके टीचर्स बोलते हैं यू कैन डू इट, पर उनके दिमाग में है ओके सर आई नो आप बोलोगे क्योंकि आप तो टीचर हो, बट आई नो माई सेल्फ आई कांट डू इट. तो मतलब वो उनको हमेशा लगता है कि मेरे से नहीं होगा. सोचो आप लोग में कोई हो तो कहीं ना कहीं ये आपके सिम्टम्स से ना मैच करे. दे सी देमसेल्फ फेलिंग बिफोर दे बिगिन. कोई चीज स्टार्ट करने से पहले ही डर जाते हैं कि कहीं मैं गिर जाऊं तो, कहीं मैं फेल हो जाऊं तो. अभी तक कुछ किया ही नहीं है, बट बिफोर दे गो अहेड दे फील इट. देयर आर सम पीपल, वो उनको जब मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो आपका फ्री क्लास खत्म हो गया, अभी आप थोड़ा सा पे में जाओ, थोड़ा अपने क्लास को कंटिन्यू करो, वो लोग बोलते हैं कि सर अगर मेरे से नहीं हुआ तो. क्यों नहीं होगा? बहुत लोग तो ना इतने ज्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं सर आप मेरे को गारंटी देते हो कि मैं इंग्लिश में बात करूंगी. अब मैं बोलता हूँ कि यार गारंटी के लिए तो आपको मुझे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा क्योंकि मेरे को आप पे ज्यादा काम करना पड़ेगा. लेकिन गारंटी तो आपको देना पड़ेगा कि आप, मैं जो बोलूंगा वो आप करोगे कि नहीं. इफ यू डू दैट यू विल डेफिनेटली बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. They have a hard time forgiving their mistakes and make mistakes pay the price forever. अब थोड़ा और डीप में जाते हैं हम लोग. we are human beings. हमारे लाइफ में भी हम लोग बहुत सारे गलत काम किए होंगे अपने लाइफ में. बहुत समय हमने किया कुछ ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए. तो बहुत लोग हैं जो वहां से उठ नहीं पाते. They have done something wrong and they cannot forgive themselves. I don't know is there anybody is there or not. In my life also I have done many mistakes and बहुत समय ऐसा भी होता है कि you start feeling कि यार अब शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊं. So this is a low self esteem. If you can't forgive yourself, it is a low self esteem. आपको अपने आप को माफ करना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी बड़ी गलती आपने क्यों ना की हो. आप अगर रियलाइज करते हो तो वो गलती माफ हो सकती है. कोई आपको माफ करेगा कि नहीं करेगा दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. आप सबसे पहले अपने आप को माफ करोगे कि नहीं दैट इज इंपॉर्टेंट. विल यू फॉरगिव योरसेल्फ? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ये लोग ना हमेशा शायद पास्ट में उन्होंने कुछ गलती किया होगा उसी को लेके हमेशा सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने बहुत गलती की, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है. दिस इज लो सेल्फ एस्टीम. If you think like that, it is a low self-esteem. They believe they can never be as good as they should be or as others. उनको लगता है कि मैं अच्छी नहीं हो पाऊंगी. I will never be organized. वो लोग कंपेयर करते हैं मैं स्मृति जैसा अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, मैं चैताली चैटर्जी जैसा बोल नहीं पाऊंगा, मैं देवाशीष चैटर्जी जैसा स्मार्ट नहीं बन पाऊंगा. They always compare with others. So if you compare with others, it is a low self-esteem. Always remember this. आप लोग में बहुत लोग हैं जो अभी अपना वीडियो ऑफ करके रखे हो. क्यों? अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ठीक है. अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपको नर्वस लगता है वीडियो ऑन करने में, तो ये लो सेल्फ एस्टीम है. और बाकी बहुत कुछ रीजन हो सकता है, बट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है. बहुत लोग अपना वीडियो ऑन नहीं रखते हैं. सो थिंक अबाउट इट. ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई दूसरा रीजन हो चलेगा. They are afraid to show their creativity because they will be ridiculed. कोई भी नया काम करने से पहले उनको डर लगता है
उनको लगता है कि कोई भी नया काम मैं करूंगा अगर फेल हो जाऊं तो। So what's the meaning of ridiculed? रिडिक्यूल्ड मतलब मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। आई विल बी रिडिक्यूल्ड। Making fun. यस, पीपल विल मेक फन ऑफ मी। Will make लोग fun मेरा of. मजाक उड़ाएंगे अगर मैं नहीं कर पाया तो। Got it. Yes, Got it. you know, I'll tell you very good example, you know, जब मैं बैंक में नौकरी करता था and I wanted to become a trainer, तो उस समय भी मैं ये सोचता था कि अभी मैं बैंक में इतना अच्छा कमा रहा हूँ, मैं बैंक छोड़ूंगा फिर मैं अपना कोचिंग स्टार्ट करूंगा, उतना शायद मैं पहले अर्न ना कर पाऊं तो लोग हंसेंगे। लोग 10,000 से 50,000 जाते हैं, मैं 50,000 से 10,000 में जाऊंगा, लोग हंसेंगे। पीपल विल मेक अ फन ऑफ मी। देखो ये सुभाष, लोग ऊपर जाते हैं, ये पीछे आया है। बहुत लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, बोलते नहीं भाई मेरा बैंक ही ठीक है भाई, जैसे मर मर के मैं काम करूंगा लेकिन मेरा सैलरी कम ना हो भाई, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और यही सोच के बहुत लोग अपने लाइफ में वो नहीं करते जो उनको अच्छा लगता है। आप ही सोचो ना, आपको भी बहुत कुछ अच्छा लगता होगा लाइफ में, क्या आपने कंटिन्यू किया? कोई ना कोई कारण से उसे आपने, माने कोई भी हो आप में से, आप कुछ ना कुछ शायद लाइफ में आपने सैक्रिफाइस जरूर किया हो। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट सैक्रिफाइस मतलब आप जो बनना चाहते हो, अगर आप वो उस पे आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एस्टीम डाउन है, इट इज लो। थिंक ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर डिससैटिस्फाइड देयर विद देयर लाइफ। फिर से एक बार बताओ सर। Okay, I'll say that. They're dissatisfied with their life. They're not happy in their life. They're always sad. उनको लगता है कि मेरा जन्म ही हुआ है हमेशा अपसेट होने के लिए। आई एम अ बोरिंग पर्सन। बहुत लोग बोलते हैं सुभाष जी पता है मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मेरे से ज्यादा बात मत कीजिएगा। आई एम वेरी बोरिंग। मैं जहां जाता हूँ ना लोगों को बोर करता हूँ। थिंक अबाउट यू, डू यू फील आर यू अ बोरिंग पर्सन? थिंक अबाउट इट। इफ यू फील देन इट इज अ लो सेल्फ एस्टीम। Yeah, somebody was asking something. Devashish, you were asking something? Yes, the previous slide. What the last line you said? No, that. Yeah, the last line I said that, you know, whenever they want to do something, they feel people will laugh at them. अगर मैं fail हो गया तो, like, you know, when I was leaving banking, my father said कि भाई मैं तो बोलूंगा तुम बैंक मत छोड़ो. My father said, बहुत बड़ी गलती Yeah. करोगे अगर तुम बैंक छोड़ोगे तो. My father said. तो मैं डर भी तो सकता था ना कि अरे यार पापा ने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन मैं डरा नहीं। मुझे लगा कि नहीं भाई बहुत हो गया, बहुत डर लिया अपने लाइफ में। पहले तो मेरे दादाजी बिना जान के डरा दिए, उनको भी पता नहीं वो डरा रहे थे और मैं भी डर गया। तो अब पापा भी आ गए डराने। हो सकता है पापा डराने नहीं आए, पापा मुझे समझा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। सो अगर मैं भी उसको फील करूंगा तो डर जाऊंगा, मैं पापा को उल्टा मुझे बोलना पड़ेगा नहीं पापा आई एम रेडी, ताकि मेरा जवाब सुन के मेरे पापा भी कॉन्फिडेंट हो जाए। सो उसमें मैं काफी हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ। नाउ माय फादर फील्स कि नहीं बेटा में गट्स है, चलो भाई। तो ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता था कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि नहीं मेरे को सब ठीक करना है और मैं सब ठीक करूंगा, और वो हो गया। आपको भी अगर लगता है कि आपको अपने लाइफ को ठीक करना है और आप तैयार हो एंड यू आर रेडी टू चेंज योरसेल्फ, एक दिन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आज तक तो जिसने ऐसा सोचा है वो आज तक कभी फेल नहीं किया है। जो दो चिंता में रहता है, कर पाऊंगा, शायद कर पाऊं, अगर नहीं कर पाया तो, जो लोग दो चीज सोचते हैं ना वही फंसते हैं। So from this example, can we draw that self-confidence is directly proportionate with self-esteem? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्युटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ एस्टीम। एक और चीज अगर मैं आपको बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बोल रहा हूं, मैंने अपने पापा की नहीं सुना, मैंने किसी का नहीं सुना और मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं ट्रेनर बन गया। ये डिसीजन मैंने सही लिया कि गलत लिया? आई वांट टू आस्क यू, एनीवन, हैव आई टेकन द राइट डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन? As on date, you are right. But if you As on date. Yeah, as on date, I must say, because at that time when your father objected,
he gave the objection from his point of view. Yeah, absolutely. So No, I'm not that's why asking. I want one answer. I need one word answer. Have I done right or have I done wrong? we have done What do you right. feel? Then Right. 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 You are Okay. right. Now I'm telling you, neither I took the right decision nor I took the wrong decision. मैंने ना कोई right decision लिया और ना ही मैंने wrong decision लिया. मैंने एक डिसीजन लिया और उसको राइट साबित किया. अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा. अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? कोई डिसीजन राइट रॉन्ग नहीं होता है. यू हैव टू मेक इट राइट. अगर मैं बैंक नहीं छोड़ता वो भी राइट हो सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कौन सा चीज को राइट बोलना है. लाइफ में राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है. आप जिस चीज को राइट बोलोगे दूसरा इंसान उसे रॉन्ग बोलेगा. मेरे लिए बैंक छोड़ना राइट था, पापा के लिए वो रॉन्ग था. आप जो सोचोगे वही आपके लाइफ में होगा. आपको मैं बोलूंगा डिवोर्स राइट है कि रॉन्ग है, आप में बहुत लोग बोलेंगे राइट है, बहुत लोग बोलेंगे रॉन्ग है. आप अगर डिवोर्स पॉजिटिव माइंडसेट से ले रहे हो तो राइट है. आप अगर डिवोर्स नेगेटिव माइंडसेट से ले रहे हो तो रॉन्ग है. तो देयर इज नो डिसीजन राइट एंड रॉन्ग. हाँ, हम लोग कोई राइट रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते हैं. हम लोग डिसीजन लेते हैं और लेने के बाद अगर सोचते हैं कि भाई शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो वो रॉन्ग हो जाता है. जब आप सोचते हो कि यार मैंने सही डिसीजन लिया है तो वो राइट हो जाता है. डिसीजन राइट रॉन्ग नहीं होता है कोई. हाँ, नेवर थिंक लाइक दैट. यू मेक इट राइट एंड रॉन्ग. आप अपने एक्टिविटी से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से उस डिसीजन को राइट या रॉन्ग बनाते हो. सो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोग नेगेटिव लो सेल्फ एस्टीम के होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होता है. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम अलोन. वो हमेशा ना अकेले रहना पसंद करते हैं. उनको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है. दे वांट टू स्टे अलोन. जैसे भीड़ देखते हैं ना उनको जैसे ना नफरत हो जाता है. यार ये लोग भी आ गया, आई कांट सी एनीबॉडीज फेस. आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि किसी को देखने से आपको गुस्सा आ जाता है, या आपको लगता है यार ये फिर आ गया, अरे यार ये फिर सुबह सुबह आ गया मेरे पास, यार इसकी शक्ल देख लिया मैंने फिर से. अगर ये सब सिम्टम्स मिलता है तो भाई डर की बात है. देयर आर चांसेस कि भाई वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है. और जो लोग हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं ना वो लोग बहुत मस्त होते हैं. पता है, वो लोग हमेशा हर इंसान को ना नए तरीके से देखते हैं. सपोज एक दोस्त है, उसके साथ आपका फाइट हो गया, वो फाइट को ना उसी दिन वो रफा दफा करके नेक्स्ट दिन एकदम नए से स्टार्ट करता है. जो लोग हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं ना वो लोग झगड़े को आगे नहीं बढ़ाते, झगड़े को रिवाइव करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि फिर से सब ठीक हो जाए. अगर वो इंसान ठीक है तो हमारा रिलेशनशिप भी ठीक हो जाना चाहिए. अगर वो लड़का ही ठीक नहीं है तो हमको नहीं करना है. तो दे मेक डिसीजन वेरी फास्ट, करूंगा कि नहीं करूंगा. वो लोग, बहुत लोग होते हैं ना जो वो गुलाब का फूल लेते हैं, ही लव्स मी, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, ही लव्स मी नॉट. आप लोग देखे होंगे. तो ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है लो सेल्फ एस्टीम का. मैं आपको सब बता रहा हूँ. आप खुद जांच कर लेना भाई आपका लो है कि हाई है. थिंक अबाउट इट. चलो एक पास्ट से एक स्टोरी बताते हैं. आप लोगों को स्टोरी ज्यादा पसंद आएगा. जब व्हेन आई वाज इन क्लास 10, सो मैं तो अभी उतना शरीफ हूँ, पहले उतना शरीफ नहीं था. आई हैड अ गर्लफ्रेंड. तो क्लास 10 में पढ़ता था तब. तो एक गर्लफ्रेंड थी मेरी. तो अच्छा, मैंने गर्लफ्रेंड मैंने आई स्टार्टेड लविंग हर. यार ऐसा नहीं है, आई हैड अ वेरी प्योर हार्ट बट मुझे पता नहीं था कि एक दिन उसका चिट्ठी आता है मेरे पास, और वो भी ना वैलेंटाइंस डे के दिन. वैलेंटाइंस डे, सोचो वैलेंटाइंस डे में हम लोग एज अ कपल वी फील कि एक गिफ्ट मिलेगा. तो हमें एक चिट्ठी मिला, और हाँ एक बड़ा सा बॉक्स भी मिला, गिफ्ट बॉक्स. तो चिट्ठी में जब पढ़ा ना उसमें लिखा हुआ था कि सुभाष आज से हम लोग नहीं मिलेंगे, और आज तक तुमने जितना भी गिफ्ट दिया है ना ये गिफ्ट वाले बॉक्स में है. मैंने सोचा वो गिफ्ट दिया है, ये तो मेरा ही गिफ्ट मेरे को वापस किया गया. नहीं, अच्छी लड़की थी ना इसीलिए वापस कर दी, नहीं तो वो भी वापस नहीं मिलता. चलो वो अलग बात है.
So and she refused me, and मेरे को सच में ना I never could take that moment. मुझे लगा कि ऐसा भी होता है क्या? Do people hurt also? Do people promise and break the promise also? तो मुझे बहुत hurt हुआ था, because from very child ना मैं बहुत simple था, मुझे झूठ भी हो सकता है ऐसा कभी I never thought of it. So मुझे बहुत खराब लगा, मतलब 3-4 दिन तो शायद I was very, you know, what should I say, very upset, you know, बहुत खराब लगा. इवन बहुत उस समय ना बहुत सारे बेवफाई वाले गाने भी चलते थे, तो एकदम उसको गाना चला के सुनता था, अच्छा सिला दिया अच्छा तूने सिला दिया मेरे तूने प्यार का, बहुत सारा गाना होता था उस समय, So, आप लोग हंस रहे हो, मेरा दिल दुखा, आप लोग हंस रहे हैं, नहीं सोचो ये सर, हाल अरे हंस नहीं रहा है, है. रिलेट कर रहा है सर, रिलेट कर रहा है. ओहो, आप ज्यादा रिलेट मत आप कीजिए, आपकी वाइफ अगर नहीं नहीं, आमने एक सामने होगी तो प्रॉब्लम हो एक नहीं, जाएगा आपको. ये तो जस्ट पीछे पीछे से गुजर गई ना, तो नो नो वरीज, एकदम थोड़ा बहुत कहीं नहीं मिलता जुलता है ना, इसलिए. ओके, तो वही बात है, सो बहुत ठीक है, खराब लगता है, लेकिन बहुत लोग ना ऐसा सिचुएशन होने से दे टोटली ब्रेक, उनको लगता है कि माई लाइफ इज टोटली एंड, वो छोड़ के चला गया, अब जी के क्या करे. दिस इज अ लो सेल्फ एस्टीम. खराब लगना ठीक है, एक रिलेशनशिप था दैट ब्रोकन, बट you feel as if life is end, that is wrong. Okay, they complain and criticize, वो लोग हमेशा कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. दे नेवर से कि लाइफ इज गुड, दे ऑलवेज हैव अ पॉइंट टू से दिस इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है. उनके पास हमेशा ना एक प्रॉब्लम होता है, सोल्यूशन तो छोड़िए, हमेशा एक प्रॉब्लम होता है कि ये क्यों नहीं होगा, व्हाई दिस विल नॉट हैपन. दे वरी अबाउट एवरीथिंग बट दे डू नथिंग. वो लोग हमेशा चिंता करते हैं अपने लाइफ को लेके, बट कुछ स्टेप नहीं लेते अपने लाइफ में. दे डोंट डू एनीथिंग, दे जस्ट क्राई, दे जस्ट कंप्लेन एंड दे स्लीप. दे नेवर गो फॉर solution. People with low self-esteem have an attitude, I can't do it. वो हमेशा यही सोचते हैं कि I can't do it. I can't do it. मेरे से बिल्कुल नहीं होगा ये. I can't do it. Any question? Yeah. Friends, today we have talked about that how to identify people who have the high self-esteem. आप लोग कैसे पहचानोगे उन इंसान को जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हाई होता है. दे आर ऑलवेज हैविंग अ हाई सेल्फ एस्टीम. और टुडे आल्सो वी हैव लर्न दैट हाउ टू नो दैट आई हैव हाई और लो सेल्फ एस्टीम. तो आज हमने ये दो चीजों को लेके बात किया. हम लोग बाकी वाला जो पार्ट है वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. हाउ टू improve our our self esteem. How to improve our self esteem. अपने सेल्फ एस्टीम को हम कैसे हाई करें ताकि जो भी प्रॉब्लम, even we can also go and interact with people, we can also be always happy, we can also be super confident. प्रॉब्लम होगा लाइफ में, बट इट्स ओके, आई कैन मैनेज. ये एटीट्यूड होना चाहिए. एटीट्यूड रहेगा कि yes, I can do it. But I really want to know from you that मतलब रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, वेदर यू कैन फील कि हाँ कुछ कुछ स्टोरी आपके साथ मिल रहा है, छोटा मोटा भी हो तो क्या. एक Yes, sir. You are right, sir. यस एकदम आई एम टेलिंग यू. Not एकदम, but कुछ. हाँ, कुछ कुछ मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, दूंगा, देखिएगा आपका कुछ कुछ बहुत कुछ हो जाएगा. आई जस्ट गिव वन ए वेरी गुड एग्जांपल, और इसी एग्जांपल के साथ आज हम लोग एंड करेंगे. मेरा एग्जाम चल रहा था, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था. तो इट वाज माय एग्जाम, एग्जाम टाइम, मेरा एग्जाम चल रहा था, एंड माय डैड केम, मेरे पिताजी आए, मेरे को बोले कि यू हैव टू गो टू मार्केट, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग. तो सी इट वाज एन एग्जाम टाइम, सो बाहर जाना
मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आई हैव टू स्टडी, बट यू नो आई कुड नॉट से नो, मैं ना ही नहीं बोल पाया। आई जस्ट सेड ओके, ले आता हूँ, कुछ लेना ही है तो ले आता हूँ। बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मुझे लग रहा था कि मैं उस समय बोलूं सामने वाले को कि नो, मेरे को पढ़ना है पापा, आई हैव टू स्टडी, बट मैं बोल ही नहीं पाया बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड कि कैसे मैं ना बोलूं। ना बोलूंगा तो दो चीज होगा, या तो मेरे पापा मेरे को मारेंगे, या तो मेरे पापा मेरे को बोलेंगे तू बहुत खराब हो गया यार, तू ना बोलना सीख गया है, तू बड़ों को ना बोलता है। आई डोंट नो आपके लाइफ में ना बोलने वाला प्रॉब्लम होता है कि नहीं, आप बोलना चाहते हो ना, लेकिन मुंह से निकलता है हाँ। यू वॉन्ट टू से नो आई डोंट वॉन्ट, लेकिन अंदर से आता है आवाज आई डोंट वॉन्ट, बट सामने वाले को बोल देते हो ओके आई वॉन्ट। किसी की लड़की की शादी हो रही है, उसको लग रहा है आई डोंट वॉन्ट टू मैरी दिस बॉय, बट पापा मम्मी के शक्ल देख के बोलता है ओके आई विल। सोचो, किसी के साथ भी हो सकता है, मैं छोटी बड़ी हर एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके लाइफ में अगर आप यू वांट टू से नो एंड यू आर सेइंग यस, इससे बड़ी गलती और इससे बड़ा, इससे छोटा लाइफ सेल्फ स्टीम हो ही नहीं सकता। सी, आज है रियलाइजेशन का दिन। टुडे वी हैव टॉक कि हमने क्या गलती किया बचपन से लेके आज तक। वी हैव डन लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। जहां ना बोलना था वहां हाँ बोल दिया, जहां पे जो नहीं करना था वहां पे वो किया, अपने सेल्फ स्टीम को डाउन किया। आई थॉट दैट लाइफ मेरे लिए नहीं है, आई कैन नॉट सक्सीड। अपने लाइफ में ना, मतलब एक दो वर्ड बोलूंगा, जो लोग लो सेल्फ स्टीम के होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है ड्रीम किलर। ड्रीम किलर, अपने ड्रीम को वो खुद मारते हैं। आई नो आपके लाइफ में भी बहुत सारे ड्रीम आप लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने तो ड्रीम को किल कर दिया है, और कुछ लोग शायद आगे जाके ड्रीम को किल कर दे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नेक्स्ट वाला एपिसोड देख लो, नेक्स्ट वाला सेशन देख लोगे, तो शायद अपने ड्रीम को फिर से रिवाइव कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट season, next session we'll be talking about how to take this self esteem really very high, really very high। देखो भाई, हर इंसान का कमजोरी होता है, हाँ, सबकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी होगी, बट बहुत लोग कमजोरी को लिमिटेशन सोचते हैं, और कुछ लोग कमजोरी को फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम हर एवरीबडी वी हैव प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम करने से तो फायदा है नहीं, वी हैव टू गो आउट। So guys, next class, next session, we will सर talk about. मैं एक बात बोलूं? हाँ प्लीज। कोई किसी को जिद्दी बोलता है तो इससे क्या सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है या डाउन हो जाता है? जिद्दी बोलता है। मैं समझा नहीं, आप क्या बोलते हो अपने आप को? कौन क्या बोलता है वो यहाँ आज का क्लास में? कोई मुझे आते ना, कोई मुझे आके बोलते आप तुम बहुत जिद्दी हो। आप क्या बोलते हो उस समय खुद को? आप अपने को क्या बोलते हो उस समय? वो है सेल्फ स्टीम। लोग क्या बोलते हैं वो आपका सेल्फ स्टीम नहीं है। आप क्या बोलते हो? अरे यार सच में, यार मैं सच में जिद्दी हूँ, एम आई रियली सेल्फिश? ये लो सेल्फ स्टीम है। हाई सेल्फ स्टीम क्या है? ओके, यू फील दैट आई एम जिद्दी, आई डोंट फील दैट, आई नो हु आई एम, मुझे पता है मैं कौन हूँ। दिस इज कॉल्ड हाई सेल्फ स्टीम। मैं बोलती हूँ मैं जो किया अच्छा किया। वो तो आप बोलती हो, सोचती क्या हो? आप बोलती क्या हो दैट इज डिफरेंट। आप सोचती, दिमाग के अंदर क्या है, दैट इज योर सेल्फ स्टीम। आपको उस समय गुस्सा आता है क्या? हाँ, गुस्सा आता है। लो सेल्फ स्टीम। मैं बात ही नहीं करती। हाँ, दिस इज लो सेल्फ स्टीम। दिस इज लो सेल्फ स्टीम बिकॉज आप उनके बातों को सीरियसली ले लेते हो। Sir, I also want to say something. या टेल मी। अभी तो बहुत घर घर की कहानी आएगी, लेकिन हम लोग आगे इतना बढ़ेंगे नहीं। मैं कैमरा ऑन या बोलिए संपूर्णा जी।
सर मैं कैमरा ऑन करने से संबंधित बोलने जा रही हूँ। सर हाँ। मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कुछ प्रॉब्लम था, मैंने ठीक करवाने भेजा था, तो उसका जो वो लाइट होता है एकदम कैमरे के सामने लगा दिया है। और डेली ये कैमरे से ये मोबाइल से डेली काम करना होता है, तो मैं फिर दोबारा से भेज नहीं पा रही हूँ, इसीलिए ये कैमरा ऑन करना मेरे सेल्फ एस्टीम को डाउन करता है, फिर इसीलिए मैं ऑफ कर देती हूँ। नहीं, मैं ठीक है, जल्दी देखिए, नहीं कोई बात नहीं। देखिए, आपको अगर सेल्फ स्टीम डाउन तब होता है जब आप कोई गलत, आपको पता है कि ये सही है बट आप गलत चीज करते हो, दैट कीप्स योर सेल्फ स्टीम डाउन। ओके।